Very good morning, students. I hope you all are doing well. So, today we are going to start with our fourth lesson, which is working with PowerPoint 2016. Now, firstly, we need to know what is PowerPoint. PowerPoint is an application which basically works to enhance our data in the form of various graphical representations. PowerPoint also support animations and different transitions in our data to make it more attractive. Now, in this lesson, we are going to cover few topics which are slide master, applying themes, inserting charts, animations, transitions, slideshow, and printing a presentation. So these are the few topics which we are going to cover in this lesson. Now, here is one activity which says label the ribbon components of PowerPoint window with the help of given words. So now in this हमारे पास PowerPoint window के अंदर कौन कौन से components हैं हम उनको इस ribbon में mention करेंगे. So now first we can see it denotes file. So it will be a file tab. This These are the tools which we can access very quickly. So these are quick access toolbar. Quick access toolbar. This is the command tab because it show in which we will get our commands. So this will be our command tab. So the all these are our groups. So we will write here groups. And this is our group dialog box launcher. So we will write here dialog box launcher. Now, PowerPoint is an application for making graphical representations. तो PowerPoint हम किस लिए यूज करते हैं? हम graphical representations को introduce कराने के लिए PowerPoint application का यूज करते हैं. Thus adding a visual aspect to your data. जिसकी मदद से क्या होता है कि हमारा जो डेटा है उसको एक visual aspect मिलता है. It enhancing its concepts and leading to easier communication. जिसकी हेल्प से हम अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहेंस कर सकते हैं और बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. It offers various features like customizing color schemes, adding graphics, images, animation, ट्रांजिशन इफेक्ट एटसेट्रा. तो हम पावर पॉइंट की मदद से क्या क्या चीजें कर सकते हैं? हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी कलर स्कीम को, हम उसके अंदर ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, हम उसके अंदर इमेजेस, एनिमेशन, ट्रांजिशन इफेक्ट्स को एडिट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं. In the previous class you have read the PowerPoint is an presentation software. हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज पढ़ी थी कि जो PowerPoint है वो क्या है? एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. A presentation is a collection of slides that can be arranged in a sequential manner to entertain and motivate. So हमने ये पढ़ा था कि जो पावर पॉइंट होता है वो कलेक्शन होता है वेरियस स्लाइड्स का जो क्या करते हैं? अरेंज होते हैं एक सीक्वेंशियल मैनर में जो किसी भी एक पर्टिकुलर मोटिव को फुलफिल करते हैं. अ स्लाइड इज लाइक अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन के अंदर जो स्लाइड होती है इट इज लाइक अ पेज इन अ नोटबुक दैट डिस्प्लेज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू कम्युनिकेट. और जिसके अंदर क्या होती है? वो इंफॉर्मेशन होती है जो हमें कम्युनिकेट करनी है. Let's see some other features of PowerPoint 2016. First is Slide Master. A Slide Master controls the overall appearance such as formatting and design of each slide layout and therefore each slide in a presentation. Slide Master क्या करता है? ये कंट्रोल करता है सारी की सारी appearances को जैसे कि फॉर्मेटिंग, डिजाइन ऑफ ईच एंड एवरी स्लाइड लेआउट एंड देयरफॉर ईच स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. मतलब हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका डिजाइन, लेआउट और उनकी फॉर्मेटिंग को कौन कंट्रोल करता है? स्लाइड मास्टर कंट्रोल करता है. When you modify the slide master within your presentation, the changes will applied in every slide layout. मतलब अगर हम अपने स्लाइड मास्टर को कहीं पे भी मॉडिफाई करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर तो हमारी जितनी भी प्रेजेंट स्लाइड्स हैं वहां पे उन सब में वो अप्लाई हो जाएगा. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्लाइड मास्टर?
टू मॉडिफाई एंड कस्टमाइज द बैकग्राउंड ऑफ ऑल साइड्स एट द सेम टाइम। मतलब हम स्लाइड मास्टर की मदद से मॉडिफाई और कस्टमाइज कर सकते हैं अपना बैकग्राउंड अपनी सारी स्लाइड्स का एट द सेम टाइम। For editing and text formatting such as font, font color, etc. of all slides at the same time। ये क्या करता है, ये हमारे टेक्स्ट के अंदर जो फॉर्मेटिंग होती है, उसका साइज, उसका स्टाइल में कलर, ये सब भी वो क्या करता है, एक ही टाइम पे सारी स्लाइड्स के अंदर उसको फॉर्मेट कर देता है। टू रीअरेंज द प्लेस होल्डर ऑफ ऑल स्लाइड्स एट वंस, मतलब वो रीअरेंज कर सकता है प्लेस होल्डर्स को सारी स्लाइड्स का एक ही टाइम पे। To create and modify slide master, you need to follow given steps. सबसे पहले what we need to do is we need to go to view tab, then in master view group, in view tab, master's view group, which is this, click on slide master command. Here we need to click on slide master command. The slide master task pane appears on the left side of your PowerPoint window. So when we will click on slide master, a slide master task pane appears on the left side of our window. The slide master tab select on the ribbon. The slide master tab selected on the ribbon. So then what we need to do is जो हमारा slide master tab है वो हमारे ribbon के ऊपर select हो जाएगा। Scroll up in the slide master task pane. फिर हमें क्या करना है, अपने slide master task pane के अंदर scroll करना है। On the first slide of the slide master make the changes that you want। अब इसके अंदर जो हमारी first slide है, very first slide है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो चेंजेस क्रिएट करेंगे जो भी हम चाहते हैं। वी हैव इंसर्टेड द सनफ्लावर इन द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज हमें अपने प्रेजेंटेशन के अंदर सनफ्लावर इंसर्ट करना है। You can insert, resize, move or delete the slide objects. We have resized the flower and moved it on the top right corner। हमें क्या करना है, हमने उसको मूव करके टॉप राइट कॉर्नर में हमने उसको ले जाना है, लाइक दिस। When all the changes are made, click on close master view। जब हमारे सारे चेंजेस अपनी स्लाइड के अंदर हो जाएंगे तो हमें क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करना है टू क्लोज द स्लाइड मास्टर। The changes that you have made appear on all slides of your presentation। और जो भी हमने चेंजेस अपने प्रेजेंटेशन में करे हैं, उस एक स्लाइड में करे हैं, वो हमारी सारी की सारी स्लाइड्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। Now applying themes। PowerPoint themes are predefined set of fonts। PowerPoint themes क्या हैं? These are the predefined set of fonts, colors and visual effects। तो इन themes के अंदर क्या होता है, fonts, colors और visual effects होते हैं predefined। Themes are applied to your slides for professional and united look। हम अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर एक प्रोफेशनल और यूनाइटेड लुक के लिए हम क्या करते हैं, थीम्स को अप्लाई करते हैं। With themes, you can give your presentation a pleasant sounding appearance with reduced effect। मतलब हम इनकी मदद से क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको एक pleasant sounding appearance प्रोवाइड करा सकते हैं। Now by following such steps, we can achieve the themes। Click on the design tab। What we need to do is we need to click on design tab here। Then click on the more drop arrow in themes group। themes group में जाके हमें क्या करना है, more drop arrow पे हमें क्लिक करना है। Then when we bring the mouse pointer over a theme, we can see the preview of the theme in the presentation। देखो जब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हम इस एरो पे क्लिक करेंगे ना, जो हमारा मोर ड्रॉप एरो है, इस एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें वेरियस प्रेजेंट यहाँ पे थीम्स मिल जाएंगी अपनी प्रेजेंटेशन के। अब जैसे जैसे हम अपने माउस पॉइंटर को इनके ऊपर लेके जाएंगे तो वो ऑलरेडी हमें हमारी स्लाइड पे अपीयर करके दिखाएगा कि वो कैसा लग रहा है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड थीम। वी विल सी दैट द सिलेक्टेड थीम इज अप्लाइड ऑन द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। मतलब फिर हम यहाँ से अपनी कोई सी भी डिजायर का जो भी हमें थीम अच्छा लगे उस पर हम क्लिक कर सकते हैं, तो वो हमारी स्लाइड्स जो है हमारे प्रेजेंटेशन की उन पे अप्लाई हो जाएगी। After applying the theme, we can change the color and font of the applied theme by clicking on variant group। उसके बाद में जो हमने थीम अपने प्रेजेंटेशन पे अप्लाई करी है उसके अंदर हम चेंजेस इन कलर्स और फॉन्ट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं इन द वेरिएंट ग्रुप। नाउ चेंजिंग बैकग्राउंड। Changing the background। The background of your presentation is the canvas upon which you display your message। तो बैकग्राउंड क्या है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, ये वो कैनवस है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने मैसेज को डिस्प्ले करते हैं। टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। क्लिक ऑन डिजाइन टैब।
first we need to go to design tab, click on the format background option in the customize group। फिर हमें क्या करना है, कस्टमाइज ग्रुप में जाके हमें फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। देन अ फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन विल बी शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। विंडो के राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन हमें मिल जाएगा। इट कंटेन्स 4 फिल इफेक्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास फिल इफेक्ट्स कितने होंगे, 4 होंगे। सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल। तो ये हमारे क्या है, 4 हमारे पास फिलिंग ऑप्शंस हैं। क्लिक ऑन एनी रेडियो बटन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, द बैकग्राउंड हैज बीन चेंज नाउ। फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी भी बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। Now inserting charts. A chart is a graphical representation of data which transfers the data into visual components. तो चार्ट क्या है, चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे डेटा का, जो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है डेटा को इनटू विजुअल कंपोनेंट्स। It makes easier to draw comparison and analyze the growth, relationship and trends among the values in a table. तो ये हमारे लिए बहुत इजी कर देता है कंपैरिजन को ड्रॉ करना, एज पर टू एनालाइज ग्रोथ, relationships or trends among the values in the table. To insert a chart in your slide, you have to follow given steps. Click on the layout option and select the title and content from home tab in the slide group. हमें क्या करना है, हम लेआउट ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पे हमें स्लाइड ग्रुप के अंदर टाइटल एंड कंटेंट फ्रॉम होम टैब उसको हमें सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द इंसर्ट चार्ट आइकॉन इन द स्लाइड फ्रॉम द टाइटल एंड कंटेंट लेआउट। टाइटल एंड कंटेंट लेआउट में हमें इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करना है। द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स हमारी स्क्रीन पे आएगा। देन सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट टाइप इन द लेफ्ट पेन। लेफ्ट पेन में से हम अपना कोई भी डिजायर्ड चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड द सब टाइप्स ऑफ द सिलेक्टेड चार्ट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द राइट पेन। और उसके जो सब चार्ट्स है वो हमें राइट पेन पे रिफ्लेक्ट होंगे। सेलेक्ट द कॉलम चार्ट एंड क्लिक ओके। और फिर हमें क्या करना है, अपना सेलेक्ट करना है चार्ट को, एंड देन वी नीड टू क्लिक ऑन ओके। The chart will be displayed with a data sheet that contains the primary data। और वो जो चार्ट है वो डिस्प्ले होगा विद द डेटा शीट, वो ऐसी डेटा शीट जो हमारे डेटा को, हमारे प्राइमरी डेटा को कंटेन करती हो। नाउ एनिमेशंस। An animation is a special effect that applies to a single element on a slide such as text, a shape, an image and so on। मतलब एनिमेशन क्या है, एनिमेशन एक स्पेशल इफेक्ट है जो हम अपनी स्लाइड के अंदर किसी भी एक सिंगल एलिमेंट, किसी भी एक सिंगल शेप, टेक्स्ट या फिर कोई भी इमेज, उसके ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। एनिमेशंस की मदद से हमारा जो डेटा है, हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। To add animations to a presentation, you have to follow given steps. Select the object that you would like to animate. सबसे पहले what we need to do is we need to select an object from a slide जिसपे हमें animation apply करनी है। Select the animation tab and click on the more button in the animation group. Animation group में जाके हमें क्या करना है, animation tab के अंदर हमें more group पे क्लिक करना है, more बटन पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है in the animation group. Then a drop down pane appears। जब हम more ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें एक drop down pane मिलेगा with several animated effects। These are the animated effects। The animation effects in PowerPoint are divided into 4 categories। PowerPoint के अंदर जो animation categories है वो हमारे को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखी है। Then which is entrance, emphasis, exit and motion parts। These are the 4 parts in which we have divided the animations in PowerPoint। तो फर्स्ट इज एंट्रेंस। इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। देखो एंट्रेंस जो एनिमेशन है वो क्या करती है कि हमने जो भी अपना ऑब्जेक्ट या एलिमेंट सेलेक्ट किया है स्लाइड पे, उसकी एंट्रेंस को जस्टिफाई करती है कि वो कैसे अपनी एंट्री लेगा। तो बेसिकली उस ऑब्जेक्ट की जो एंट्री है वो कंट्रोल करता है एंट्रेंस। सेकेंड इज एम्फेसाइज। इट इज यूज टू हाईलाइट की पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन। एम्फेसाइज को हम यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए की पॉइंट्स को या फिर ऑब्जेक्ट्स को अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। Then exit, it controls the exit of an object from the slide। यानी कि ये क्या कंट्रोल करता है कि हमारी स्लाइड पे से जो ऑब्जेक्ट है उसकी एग्जिट को ये कंट्रोल करता है। Then motion paths,
This is similar to emphasize effect. In this effect, objects move within the slide along a path or a pattern such as a circle or a square. मतलब मोशन पाथ क्या है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर है एम्फेसाइज इफेक्ट जैसे, बट ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव्स करता है विद इन द स्लाइड। जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्लाइड के अंदर ही मूव करेगा अलोंग अ पाथ और अ पैटर्न, जैसे कि सर्कल या फिर स्क्वायर। देन सेलेक्ट एन एनिमेशन स्टाइल, आफ्टर दिस नंबर टैग विल अपीयर ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम एनिमेशन स्टाइल, जो भी हम अपना एनिमेशन स्टाइल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में एक हमें नंबर्ड टैग अपनी स्क्रीन पे मिलेगा। दिस नंबर डिफाइंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग एंड टू एंटर द प्रेजेंटेशन, और ये इफेक्ट बताएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी प्रेजेंटेशन पे कब एंटर करेगा। क्लिक ऑन द प्रीव्यू बटन इन द प्रीव्यू ग्रुप। हमें क्या करना है, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है इन द प्रीव्यू ग्रुप, which is this, and we can preview the animation. Now timing. To add modify timing of your animation effect, you have to follow given steps. Click on animation tab. सबसे पहले हमें animation tab पे क्लिक करना है। Click on the start drop down list in timing group and choose any one of the given options. फिर हमें क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करना है टाइमिंग ग्रुप पे जाके, और हम इन ऑप्शंस में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। विच इज ऑन क्लिक द एनिमेशन बिगिंस ऑन माउस क्लिक। मतलब जो हमारी एनिमेशन है वो कब बिगिन होगी, जैसे ही हम माउस पे क्लिक कर देंगे। विद प्रीवियस, द एनिमेशन बिगिंस एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस एनिमेशन इन द लिस्ट। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिलेक्टेड एनिमेशन है वो किसके साथ स्टार्ट होगी, आपकी ऑलरेडी प्रीवियस एनिमेशन के साथ ही स्टार्ट होगी। देन आफ्टर प्रीवियस, द एनिमेशन बिगिंस इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियस एनिमेशन एंड्स। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने अभी एनिमेशन सिलेक्ट की है वो आपकी प्रीवियस एनिमेशन के जस्ट बाद क्या होगी, अप्लाई होगी। नाउ एंटर द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स दैट यू वांट टू एनिमेशन टू रन। मतलब फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन होता है स्टार्ट, ड्यूरेशन और डिले, इनके अंदर हमें अपना स्पेसिफिक टाइम जो है वो मेजर कर, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। क्लिक ऑन ईदर मूव अर्लियर और मूव लेटर टू चेंज द ऑर्डर ऑफ एनिमेशन। हम मूव अर्लियर या फिर मूव लेटर पे क्लिक करके अपने एनिमेशन के ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। नाउ ट्रांजिशंस। A transition is a special effect that occurs when you exit one slide and move on to the next during a presentation. ट्रांजिशन हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर कब आती है, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं। तो ट्रांजिशन क्या है, ये एक स्पेशल इफेक्ट है जो अकर होता है व्हेन यू एग्जिट वन स्लाइड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन। दीज आर टर्म्ड एज मोशन इफेक्ट, और उनको हम क्या कहते हैं, मोशन इफेक्ट्स कहते हैं। There are many transitions to choose from, each one of which allow you to control the speed and even add sound. तो transitions हमें क्या मदद करते हैं कि हम speed control कर सके as well as we can add sound. To apply transition, you have to follow given steps. Step 1, choose a slide on which the transition effect is to be applied. Click on transition tab. सबसे पहले we need to choose a slide जिस पे हमें transition को add on करना है. Then we will click on transitions tab. In the transition to this slide group, which is this, click on drop down arrow. यहाँ पे हमें drop down arrow पे हम जब क्लिक करेंगे, a pane with several transition effects open up. हमारे पास एक पेज आएगा जिसके अंदर क्या है, several transition effects present है। Then PowerPoint has 3 categories of transition effect. Transition effects के PowerPoint के पास 3 categories है, which is subtle, exciting and dynamic. Subtle, exciting and dynamic content. Then click on the transition effect of your choice. यहाँ से हम अपनी choice का कोई भी transition effect choose करेंगे। The selected slide will preview the effect, और selected slide है उस पे हम अपने effect को preview करेगी। If you want to remove the transition effect, click on none effect in the transition to this slide group. The effect will be removed. और अगर हमें वो effect नहीं चाहिए तो हम none पे click करके अपने उस effect को, उस transition को remove कर सकते हैं। Now time. To add modify the timing of a transition, you have to follow given steps. अपनी transition की timing को modify करने के लिए हमारे पास जो steps हैं वो हैं, when you select the transition effect, then click on sound drop down arrow in the timing group. जब हम transition effect select कर लेते हैं, फिर हमें क्या करना है, sound drop down arrow पे click करना है in the timing group.
select the sound which you want to add to your transition. फिर हम sound को select करेंगे जो हमें अपने transition पे apply करनी है. Adjust the number of seconds that you want the animation to run in the duration box. और duration box के अंदर हमें क्या करना है, अपने टाइम को सेट करना है कि फॉर व्हाट सेकेंड्स और फॉर व्हाट टाइम हमें उसको एनिमेट कराना है. इफ यू वांट टू अप्लाई दीज इफेक्ट्स टू ऑल स्लाइड्स, क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल. और अगर हम ये अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो what we need to do is we need to click on apply on all. You can also select how to move the next slide in advanced slide option. हम ये भी select कर सकते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे जाएं इन दी एडवांस स्लाइड ऑप्शन ऑन माउस क्लिक. इफ वी अनचेक दिस ऑप्शन, माउस क्लिक विल नॉट वर्क ड्यूरिंग स्लाइड शो आफ्टर इट इज यूज्ड टू सेट द टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑटोमेटिकली. तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि या तो ऑन माउस क्लिक, कि माउस क्लिक से हम चले जाएं, और अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं तो हमारा ये वर्क नहीं करेगा. और फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है आफ्टर, मतलब जिससे हम टाइम सेट करेंगे कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली आ जाए. प्रेस F5 की फॉर द स्लाइड शो. और फिर हमें क्या करना है, अपने स्लाइड शो के लिए F5 की को प्रेस करना है. नाउ व्हाट इज स्लाइड शो? A slideshow is a presentation of a series of still images on a projection screen or electronic display device, typically in a predefined sequence. तो बेसिकली स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो एक प्रेजेंटेशन ही है ऑफ सीरीज, प्रेजेंटेशन ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस. मतलब उसमें हमारे पास कोई वीडियो नहीं होती, उसमें हमारे पास स्टिल इमेजेस होती हैं जिनकी वो सीरीज है, और वो हम किसी भी प्रोजेक्शन स्क्रीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पे उसको हम शो करते हैं. वो एक तरह से स्टिल इमेजेस का प्रेजेंटेशन है, टिपिकली इन अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस. मतलब जिस भी प्री डिफाइंड सीक्वेंस में वो है उसी सीक्वेंस में हमारा स्लाइड शो चलेगा. द चेंजेस में बी ऑटोमेटिकली एंड The changes may be automatic and at regular intervals, or they may be manually controlled by a presenter or the viewer. तो इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो या तो ऑटोमेटिक होंगे या फिर रेगुलर इंटरवल्स पे जो होंगे वो हम मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हमारा प्रेजेंटर है या फिर जो भी हमारा व्यूअर है. स्टार्ट एंड एंड अ स्लाइड शो. स्लाइड शो को स्टार्ट और एंड कैसे करते हैं? क्लिक द स्लाइड शो टैब इन द रिबन. हमें रिबन पे स्लाइड शो टैब में क्लिक करना है. सेलेक्ट फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड. यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे? फ्रॉम बिगनिंग या फिर फ्रॉम करंट स्लाइड. You can also press F5 on your keyboard or click the slideshow button in the status bar to start the presentation. मतलब हमें presentation start करने के लिए या तो F5 की को प्रेस कर सकते हैं या फिर हम slideshow button को भी क्लिक कर सकते हैं in our status bar. To exit the presentation and return to normal view, click on option button, select end show. और अगर हमें उसको end करना है तो हम option button में जाके एंड शो पे क्लिक कर देंगे और प्रेस कर देंगे ESC की टू एंड द प्रेजेंटेशन. दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट एंड एंड आवर स्लाइड शो. नाउ प्रिंटिंग आवर प्रेजेंटेशन. टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स. क्लिक ऑन फाइल टैब. हमने फाइल टैब पे क्लिक किया. क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन. द प्रिंट पेन इज शोन विद द प्रिंट सेटिंग्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रीव्यू द प्रेजेंटेशन ऑन द राइट साइड. तो जब हम फाइल टैब में गए, हमें किस पे क्लिक करना है? हमें फाइल टैब में प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है. तो हमें क्या मिलेगा? एक लेफ्ट साइड में एक पेन मिलेगा और राइट साइड में. नाउ एंटर द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड इन द कॉपीज बॉक्स. फिर हमें क्या करना है? कॉपीज बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉपीज जो प्रिंट करानी है वो हम डालेंगे. सेलेक्ट द प्रिंटर एंड चूज द स्लाइड टू बी प्रिंटेड. फिर हम प्रिंटर चूज करेंगे और वो स्लाइड चूज करेंगे जो हमें प्रिंट करनी है. क्लिक ऑन द प्रिंट बटन. फिर हम प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे. So students, this was your whole chapter about the PowerPoint 2016, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे कैसे हमें अपनी प्रेजेंटेशन में चेंजेस लाने हैं, कैसे इफेक्ट, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस हम इसमें ऐड करते हैं, और कैसे हमने इस वाले टॉपिक को भी कवर करा कि हमें जो भी प्रिंट कराना है अपना डॉक्यूमेंट, उसके लिए क्या क्या है, हमें अपने नंबर ऑफ कॉपीज देने हैं, अपना प्रिंटर बताना है और वो फाइल सेलेक्ट करनी है जिसे हमें प्रिंट करना है, एंड देन वी कैन सिंपली क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन. So students, I hope the lesson is clear to you. Do revise the chapter and practice the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.